Hello, children. How are you? I hope you all are fine and you have gone through the first part of this lesson in which I discussed that there was a certain king, and once a thought came to his mind that if he knew the answer to three questions, he would never fail in his life. And for that reason, he decided to send messengers throughout his kingdom. Not only this, he had promised a large sum of money to anyone who would answer his three questions. Do you remember what were his three questions? The first question was the first question was what is the right time to begin something? I hope you all remember. The second question, which people should he listen to, means from which people he should take advice from. And the third one, what is the right time, or what is the most important thing for him to do, means the most important action. So first, right time, second, right people, and third, right action. That is what he wanted to know. Whether he got the answer or not, that we are studying. We have seen how did the wise men answer the first question. I hope you all remember the wise men, the wise people who have arrived to answer the question from different parts of the country did not answer the question correctly. What did they do? They all answered it differently. मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हाउ डिड द वाइज मैन आंसर द क्वेश्चन. Which question? The first question. And the answers that I received in my Google Classroom, none of them is correct so far. And I feel you haven't got the question rightly. My question is, how did they answer the first question? तो आपको बताना है आंसर कैसा दिया. तो वन थिंग यू मे राइट दैट दे आंसर्ड द क्वेश्चन डिफरेंटली. None of the answers was similar given by them. Okay? So that is the first thing. All the answers were different. और क्या answers थे? You have seen that some of them said that he must prepare a timetable. Others said that what? It was impossible to decide in advance the right time. So what he should do? He should avoid foolish pleasures. Okay? And what else? Always do whatever seemed necessary. Who would decide what was necessary? Okay? Then they said that he should keep a council of wise men. Then there were others who were not satisfied with this much. What did they say? Others said that whatever is urgent could not be decided in advance. There could be something very urgent. And what happened? It needed to look into future, and according to them, only magicians could look into future. Okay? So that was the answer to the first question. You have seen 4 to 5 different things have been answered. They have been enlisted here. यहाँ पर ये 4 से 5 चीज़ें लिस्ट में दी गई हैं. आंसर्स तो और भी ज़्यादा रहे होंगे. Now see the second question. What was the second question? The second question was, which people should the king listen to? मतलब किससे एडवाइस लेनी है. Okay? Now see, how did they answer? In the answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. So the first answer of the second question,
he should listen to his counselors. That is the first thing. ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है. whom should he listen to? He should listen to his counselors. Others said the priests. कुछ ने क्या कहा कि he should listen to the priest. A few others, what did they do? They said he should listen to the doctors. And yet others, that is soldiers. कुछ और भी थे जिन्होंने कहा his soldiers. So there were 4 different things for his second question that have been enlisted here. लिस्ट में यहाँ 4 चीज़ें आई हैं. They said he should listen to his counselors or his priests or his doctors or his soldiers. Many more could be there, but they have not been listed here. Second question क्या था कि उसे किनकी सलाह लेनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा उसको अपने दरबारियों की, काउंसलर्स की, कोर्टियर्स की, मेंबर्स ऑफ काउंसिल की लेनी चाहिए. कुछ ने कहा अपने प्रीस्ट्स की लेनी चाहिए, कुछ ने कहा डॉक्टर्स की और कुछ ने कह दिया सोल्जर्स की. सो आई होप यू हैव गॉट इट. इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ डिड द वाइज men answer how did the wise men answer the second question? Can you answer? How did the wise men answer the second question? सबसे पहली चीज़ आपको पता है डिफरेंट आंसर दिए सब ने. आप आंसर बनाना सीखिए. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ढूंढिए कि सब्जेक्ट क्या है आपके क्वेश्चन का. तो सब्जेक्ट पता करने के लिए आप ये देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या है, आंसर है, आंसर देना. और आंसर देने का काम कौन कर रहे हैं? द वाइज मैन. ये आपका सब्जेक्ट है. आप जानते हैं जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन करता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट मिलती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक द हेल्प सब्जेक्ट फर्स्ट. आपका ये सब्जेक्ट है द वाइज मैन, आंसर में सबसे पहले आएगा. हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है. आप जानते हैं जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड लगी होती है आंसर में ये मेन वर्ब के साथ छिप जाती है अगर नॉट ना लगा हो. तो द वाइज मैन आंसर के साथ डिड लगाएंगे, हो जाएगा आंसर्ड. द वाइज मैन आंसर्ड. किसका आंसर दिया? ऑब्जेक्ट क्या? द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड दे आंसर? मैनर आप बता रहे, वो एडवर्ब हो जाएगा. द वाइज मैन आंसर्ड द क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन डिफरेंटली. डिफरेंट नहीं लिख सकते हैं आप मैनर बता रहे हैं, आपको वर्ड को एडवर्ब में चेंज करना पड़ेगा. और डिफरेंट एजेक्टिव होता है, एजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं सफिक्स के रूप में. सफिक्स और प्रीफिक्स मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं. किसी भी वर्ड के पहले जो लेटर्स जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, और वर्ड के लास्ट में जुड़ करके जो नया वर्ड बनता है, जो लास्ट में जुड़ने वाले वर्ड्स, जैसे यहाँ मैंने डिफरेंट में एल वाई जोड़ा है तो ये बन गया डिफरेंटली, और ये एल वाई यहाँ सफिक्स है. अगर डिफरेंट के शुरू में हम जोड़ देते हैं, बिगनिंग में जोड़ देते आई एन इन, नया वर्ड बनता है इनडिफरेंट. और यहाँ पर ये जो इन वर्ड है क्या हो जाता? प्रीफिक्स. तो आप पहली चीज़ तो आप ये सीखिए कि क्वेश्चन से आंसर कैसे देते हैं. सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. सब्जेक्ट आपको भले ही कुछ भी मीनिंग ना पता हो, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो वर्ड या फ्रेज होता है दैट मेक्स योर सब्जेक्ट. यहाँ द वाइज मैन, ये 3 वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं और ये आपका सब्जेक्ट हो गया. और फिर आपकी वर्ब थी आंसर, और चूँकि यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, डिड आंसर के साथ लगा और बन गया आंसर्ड. जब भी आप डिड को रिमूव करते हैं वो मेन वर्ब के साथ जाती है, तो मेन वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज होती है. द वाइज मैन आंसर्ड. किसका आंसर दिया? द सेकंड क्वेश्चन. कैसे दिया? डिफरेंटली. नाउ यू हैव टू टेल व्हाट द आंसर्स हुआ. सम वाइज मैन सेड ही शुड लिसन टू हिज काउंसिलर्स, कॉमा. अदर्स सेड ही शुड लिसन टू हिज प्रीस्ट्स, comma. A few others said he should listen to his doctors, and yet others said
he should listen to his soldiers. So these are the four things. You have got it. Now let us go to the third question. To the third question. To the third question. Some said science. What was the third? I have told you the first question was about right time, second question was about right people, and the third question was about right action. So to the third question means what should he do? What was the right thing to do? क्या बोला? Some said science. He should do something related to science. Nowadays you see mostly the governments are concentrating upon what? Scientific development. तो कुछ ने कहा साइंस. सम चूज फाइटिंग. देखिए इंडिया चाइना आर एट वार, यू कैन से वार लाइक सिचुएशन. तो फाइटिंग सो दैट ही कुड इन व्हाट, so that he could increase his territory, increase the area of his country, and yet others religious worship. That is the third. तो तीन चीज़ें मिली अभी आपको. फर्स्ट वन इज साइंस, राइट थिंग में, सेकंड फाइटिंग, और थर्ड रिलीजियस वर्शिप. फिर से क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द wise men answer the third question? Again answer will be, again first you see the question is, how did the wise men answer the third question? अगेन यू नो हेल्पिंग वर्ब इज डिड. आंसर देना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है. किसने आंसर दिया? द वाइज मैन ने. ये आपका सब्जेक्ट है, आप इसको सबसे पहले कर दीजिए. द वाइज मैन. डिड हेल्पिंग वर्ब है, आंसर में ईडी लगाइए, आंसर्ड. द वाइज मैन आंसर्ड. किसका आंसर दिया? द थर्ड क्वेश्चन का. तो आपका सेंटेंस बन गया आंसर का. द वाइज मैन आंसर्ड द थर्ड क्वेश्चन. अगेन डिफरेंटली, डिफरेंट आंसर्स हुआ थे, तो आपने लिख दिया डिफरेंटली. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो इतने में ही मिल जाएगा. आगे बढ़िए, क्या आंसर दिया? सम सेड साइंस कॉमा अदर्स चूज फाइटिंग एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. एट अदर्स सेड he should do religious worship. That is the answer. Okay, now full 2 marks. थोड़ा सा अपन बात कर रहे थे नाउन प्रोनाउंस की. यहाँ पर आप देखिए नाउन और प्रोनाउंस की जो हमने बात की थी. प्लीज गो फॉर द 2 पैराग्राफ्स दैट वी हैव जस्ट स्टडीड इन देयर आंसर्स. ध्यान देखिए, यहाँ एडजेक्टिव्स बहुत आ रहे हैं. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये देयर क्या है. आप ये समझिए हिज, हर, योर, माय, अवर, इट्स और देयर, इनके बाद अगर कोई नाउन लगी हो, ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. कौन से एडजेक्टिव्स? पजेसिव. इनको प्रोनाउन नहीं बोलिएगा. दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव्स. चूँकि मैंने ये पहले से ही बोल दिया है कि इस लेसन में मैं नाउन, प्रोनाउन और बहुत हुआ तो वर्ब का के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो अभी मैं एडजेक्टिव्स के बारे में बता के आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता. ओके, तो आप देखिए इन द आंसर्स. आंसर क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न में लिखा गया सेंटेंस. तो वो क्या है? एक यूनिट का नाम हो गया. तो और यू ऑल नो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जिसको आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देखते हैं और उसको आप एक नाम दे सकते हैं. देखिए चीज़ का मतलब केवल वो नहीं जिसे हम देख सकें या छू सकें. थिंग, वर्ड, एनी थिंग दैट यू कैन नेम इज अ नाउन. और ये थिंग, दिस थिंग कैन बी व्हाट? फिजिकल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. ये थिंग एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है. अब कंक्रीट का मतलब वो होता है जिसका शेप हो. जैसे
आपकी चेयर हो गई, आपका पेन हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपकी मोबाइल हो गई, ये सारी चीज़ें आप छू सकते हैं। ठीक। अब आपको किसी ने डांट दिया तो आपको क्या आता है? गुस्सा। इस गुस्से को आप देख सकते हो? नो, यू कैन नॉट सी इट। दो यू कैन से व्हेन समबडी बिकम्स एंग्री हिज फेस टर्न्स रेड, बट आप इसको देख नहीं सकते। लेकिन जो इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं उसका एक नाम है एंगर। उसका नाम क्या है? एंगर। आप इसको देख नहीं सकते, बट ये नाम है उस इमोशन का जो आपके नाराज होने पर आपके अंदर होता है। तो ये भी एक थिंग है, और ये कैसी थिंग है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो आप नाउन का तीसरा फॉर्म ध्यान दीजिएगा। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। क्लियर? और यहाँ आंसर्स को आप देख सकते हैं लिखा हुआ। ओके, सो व्हाट इज दिस आंसर? दिस इज नाउन। आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन एक निश्चित पैटर्न में लिखा गया सेंटेंस क्वेश्चन कहलाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ सवाल कर दे उसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो अ नाउन। सम सेड, यही आप समझिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, यद्यप मैंने कहा था मैं एडजेक्टिव्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बट लेट मी इंट्रोड्यूस इट। ये नाउन था क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर रहा है वर्ड सेकंड। तो ये सेकंड क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप आगे बढ़िए। सम सेड, ये सम कौन है? किसी का नाम है क्या? यस, मे बी, इट मे बी नेम ऑफ समबडी। बट आप जानते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि सम की मीनिंग होती है कुछ, यानी ये नाम नहीं है, ये किसी और के लिए आया है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये कौन है? सम, वाइज मैन। उन वाइज मैन में से कुछ। तो राइटर को कहना था सम वाइज मैन, सम वाइज मैन। लेकिन ये जो वाइज मैन हैं, वो वाइज मैन को इसने हटा दिया और क्या यूज कर दिया वाइज मैन की बजाय? सम। और वाइज मैन आप जानते हो मैन क्या है? नाउन है। और कौन से मैन? वाइज। तो वाइज एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बोलते सम वाइज मैन तो सम एडजेक्टिव होता, लेकिन वाइज मैन को रिप्लेस किया है सम वर्ड ने। और आप जानते हो वाइज मैन, चूंकि मैन उसमें नाउन था, भले ही वाइज लगाए, अगर हम वाइज मैन दोनों की बात करेंगे तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज को हटा रहा है, ये सम एक वर्ड आ रहा है। तो आप बस इतना याद रखिए कि नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। व्हाट इज इट? प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। और प्रो का मतलब आप जानते हो क्या होता है? फॉर, फॉर अ नाउन। दिस वर्ड सम इज यूज्ड फॉर अ नाउन। और क्या था वो नाउन? यहाँ वाइज मैन, उनको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए सम क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके। अगर आपको इसके काइंड में जाना है तो इट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके। कई बार आप नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं, बट हियर यू सी सम सेड। अगला सेंटेंस आ रहा है, सम सेड इज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। सम सेड अपने आप में कंप्लीट है। अब ये दैट कंजंक्शन हुआ, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। मैं धीरे धीरे, भले ही मैंने कहा था कि मैं दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच देखूंगा, तीसरी वर्ब होगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि नाम आपको सभी के बता दें। आपने देख लिया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गई, वर्ब हो गई, और ये कंजंक्शन आ गया। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन कहलाता है। अक्सर बच्चे कंजंक्शन की स्पेलिंग गलत करते हैं, आप ध्यान दीजिए। इट इज़ CONJUNCTION। मैं अगले किसी भी दिन आपसे ये स्पेलिंग पूछूंगा, एंड आई होप यू आर गोइंग टू टेल मी द करेक्ट स्पेलिंग। जो ध्यान देने की बात है वो क्या है? JUNCT। अक्सर बच्चे यन को हटा देते हैं, तो आप याद करिए CON JUN, यानी तीन तीन को अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो दोनों में एन में इंड हो रहा है, फिर CTION। बस आप ये रखिए कि आप तीन पार्ट में डिवाइड करिए और तीनों पार्ट को एन पे ख़त्म कर रहे हैं, और जो थर्ड पार्ट है उसमें 5 लेटर्स हैं, CON JUN CTION। ओके, कंजंक्शन।
कंजंक्ट का मतलब होता है टू ज्वाइन या टू कंबाइन, और इस किसको ज्वाइन या कंबाइन करता है? दो सेंटेंसेस को, इसी तो इसको कहते हैं कंजंक्शन। यहाँ हो गया दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं चर्चा कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ आ गया पीपल। पीपल क्या है? व्हाट इज दिस वर्ड पीपल? पीपल इज अगेन अ नाउन। मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, किंग भी आप जानते हैं किसको बोलते हैं, ये भी नाउन हो गया, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप छांटिए। काउंसिलर्स नाउन हो गया, कौन से काउंसिलर्स? हिज काउंसिलर्स। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। अदर्स सेड, अब अदर्स किसके लिए आ रहा है बताइए? कैन यू टेल मी? इट इज यूज्ड फॉर वाइज मैन। सम के बाद जो और रह गए तो उन्हीं वाइज मैन के लिए आया ना, तो अदर्स क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। प्रीस्ट फिर से आपका हो गया कॉमन नाउन। तो इस तरह से आपको इस लेसन में नाउन और प्रोनाउंस ढूंढने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, और जितने भी आपको नाउन मिलते हैं उसको आप प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिवाइड करिए। और थोड़ा सा और जोड़ूंगा, अगर आप कर सकें, कि जितने भी आपको कॉमन नाउन्स मिलते हैं उसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करिए। ओके, तो आपने देख लिया तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आ चुके हैं। अब देखते हैं किंग का रिएक्शन। वेदर द किंग वाज हैप्पी, whether the king has got what he wanted to know, if he had got. See, as the answers to his questions were so different. आंसर्स कैसे थे? अब आंसर्स क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है ना, और आंसर्स वो डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। आंसर्स नाउन है तो ये डिफरेंट क्या हो जाएगा? A word that tells about a noun is adjective, adds something, ad, एक और डी लगाइए, ऐड माने जोड़ना, और क्या ऐड करता है? समथिंग। किसमें? नाउन में। आंसर्स कैसे थे? डिफरेंट थे, तो ये डिफरेंट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। कितने डिफरेंट? अब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, बहुत डिफरेंट, सो डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के को मॉडिफाई करे, वर्ब में कुछ जोड़े, एडजेक्टिव में जोड़े, प्रीपोजिशन में जोड़े, कंजंक्शन में जोड़े। ध्यान रखिए, मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी के बारे में कुछ बोले, वो कहलाता है एडवर्ब। कितना डिफरेंट? वेरी डिफरेंट। ओके, तो आप एडवर्ब भी ध्यान रखिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट को भी ध्यान दो। सेटिस्फाइड वर्ब होगी, और वर्ब को बता रहा है नॉट, वर्ब को निगेटिव बना दिया। वर्ब को निगेटिव बनाने वाला वर्ड भी एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एंड गेव नो रिवार्ड। अब समझिएगा, द क्वेश्चंस व आंसर्स वेरी डिफरेंटली बाय द वाइज मेन। सो व्हाट डिड द किंग डू? ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, he did not accept any answer, and because of that he did not give reward to anybody. He gave no reward. Okay, instead, in place of giving reward, what did he do? He decided to seek the advice of a certain hermit. There was a hermit. What is hermit? A monk, a saint, ascetic। एक वर्ड आप ले सकते हो, इसके लिए थोड़ा नया वर्ड आप रखिए, ASCETIC, ascetic या फिर मॉन्क, मतलब होता है सन्यासी, हर्मिट। ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट। हर्मिट, दिस हर्मिट। अब देखो हर्मिट के बारे में ये पूरा सेंटेंस आ रहा है। मैं बता रहा हूँ नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, और अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाए तो क्या कहेंगे? फ्रेज? नो, फ्रेज सेंटेंस नहीं होता, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इट इज अ क्लास हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। दिस हर्मिट वाज वाइडली नोन का मतलब वेरी फेमस, वाइडली फेमस। नोन का मतलब है फेमस। व्हाट वाज ही फेमस फॉर?
ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। विजडम के लिए अपन इंटेलिजेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए किसी भी लैंग्वेज में कोई भी दो वर्ड्स पूरे के पूरे सिनोनिम्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे ये तो होता है, हिंदी में जल का पानी होता है, होता है? नहीं होता। वह शर्म से पानी पानी हो गया, बोलिए वह शर्म से जल जल हो गया, नहीं होता ना। आई फील यू आर गेटिंग मी। परफेक्ट सिनोनिम का मतलब होता है जब एक शब्द दूसरे शब्द को हर कॉन्टेक्स्ट में, हर संदर्भ में रिप्लेस कर दे, तब वो दूसरे शब्द का सिनोनिम यानी परफेक्ट सिनोनिम बोला जाता है। सिमिलर भले हैं, कई जगह पर हम कह सकते हैं हमने जल पिया, हमने पानी पिया, बाल्टी में जल है, बाल्टी में पानी है, लेकिन जब हम कहेंगे वह शर्म से जल जल हो गया तो गलत हो जाएगा। ओके, ऐसे ही विजडम और इंटेलिजेंस में भी डिफरेंस है, फिर भी कभी कभी हम लोग यूज कर देते हैं। अब ये राजा, दिस किंग, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? He decided to go to the hermit. Why did he decide to go to the hermit? He decided to go to the hermit because he did not get the right answer. अब थोड़ा सा हर्मिट के बारे में पढ़ करके अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर्मिट ने इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया। Let us see. The hermit lived in a wood. वुड का मतलब लकड़ी? नो, हियर वुड के पहले आप देखिए क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, एंड हियर वुड मीन्स फॉरेस्ट, FOREST। इवन जंगल वर्ड इज यूज्ड इन इंग्लिश। सो वेयर डिड द हर्मिट लिव? अब आप देखिए लिव वर्ब में ईड यानी लगा दिया, डिड लग गया, और जब भी डिड लगा हो वर्ब में यानी डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस इंग्लिश का यूज हुआ है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। अब वुड के बारे में देखो, जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ये विच से शुरू हो रहा है, ये फिर से क्लास आ गया। जंगल के बारे में बोल रहा ना, विच ही नेवर लेफ्ट, ही नेवर लेफ्ट दैट जंगल। ये लेफ्ट भी क्या है, ईडी वाला है, लेकिन यहाँ पर ईडी नहीं लगा। ये एक वर्ब होती है लीव, LEAVE, लीव माने छोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट, डिड लग गई। थर्ड फॉर्म हैज़ हैव हैड के बाद यूज़ होती है और पैसिव वॉइस में यूज़ होती है लेफ्ट। और ING लगाओगे तो LEAVE रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, नॉट रिप्लेस, और ING लगा देते हैं लिविंग। क्लियर? और डज लगेगा तो इसमें यस जोड़ दोगे, लीव्स। तो क्या करता है, ही नेवर लेफ्ट हिज जंगल। हर्मिट के बारे में आपको अगर कोई पूछे व्हाट डू यू नो अबाउट दिस हर्मिट, तो आप क्या बोलेंगे, दिस हर्मिट लिव्ड इन अ जंगल, फुल स्टॉप। आप विश से मत जोड़िए, ही नेवर लेफ्ट हिज जंगल। ही सा नो वन मीन्स ही डिड नॉट मीट एनीबडी, किसी से मिलता नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक और पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने नाम बता दिया, सिंपल पीपल। कैसे पीपल, सिंपल पीपल। पीपल के बारे में बता रहा है वर्ड सिंपल। किसके बारे में बोल रहा है वर्ड सिंपल, पीपल के बारे में। तो सिंपल क्या हो जाएगा, व्हाट विल इट बी, इट विल बी एडजेक्टिव। और पीपल क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, भले ही देखने में सिंगुलर लग रहा है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। अब देखो, दिस किंग वाज आल्सो वाइज। क्या करता है, जैसे ही उसे पता चला, ही कौन है यहाँ पे, हर्मिट है ना, नाउन के बदले में आ रहा है। यस, डू यू रिमेंबर द वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन? वेरी गुड, इट इज प्रोनाउन, आई फील यू ऑल नो। ही डिड नॉट मीट एनीबडी, नो वन। किससे मिलता था, whom did he meet only? He met only। अब देखो मीट का मैंने डिड हटाया ना, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। ये भी याद रखिए, मीट जब डिड लगाओगे या डिड हटाओगे तो मेट। और थर्ड फॉर्म भी होती है मेट। ING आप लगा लोगे आराम से, मीटिंग और मीट्स। तो एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। क्या पहने उसने, क्लॉथ्स पहने। क्लॉथ्स आपका नाउन हो गया। और कैसे थे क्लॉथ्स, ऑर्डिनरी, सिंपल। ऑर्डिनरी की मीनिंग सिंपल, और क्लॉथ्स को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो व्हाट विल इट बी, इट अगेन विल बी एन एडजेक्टिव।
बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट। यहाँ पर देखो बिफोर कंजंक्शन है, क्यों है थोड़ा सा डिस्कस बाद में करेंगे। ही अगेन, हु इज ही हियर? ही इज द किंग। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, मतलब हर्मिट के हट के पहले ही उसने क्या किया? द किंग लेफ्ट। अभी हमने बताया था लेफ्ट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? लीव की, LEAVE, LIVE नहीं, LEAVE। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने हॉर्स को, घोड़े को वहीं छोड़ दिया। किसके साथ? विद हिज बॉडी गार्ड। एंड वेंट ऑन एलोन, और फिर क्या किया? वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? अब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट फिर से है, वेंट ऑन एलोन, वेंट ऑन एलोन। कहाँ गया अकेले? वेयर डिड ही गो? ही वेंट टू द हर्मिट एलोन। वाई डिड ही डू दैट? वो क्यों ऐसा करता है? कैन यू आंसर? वाई डिड ही वेंट देयर एलोन, वेंट ऑन एलोन? बिकॉज द हर्मिट यूज्ड टू मीट ओनली द सिंपल पीपल। इसीलिए पहली चीज आप देखिए, सिंपल बनने के लिए उसने क्या कहा? किया ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। पुट ऑन माने पहनना, टू वेयर। पुट ऑन, देखो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा है, पुट के साथ क्या लगा दिया? ऑन। जब वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन आए या एडवर्ब आए और दोनों वर्ड मिलके एक डिफरेंट मीनिंग दें, जो उसमें इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उससे, तो ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मीनिंग क्या है? पुट माने ऊपर, पुट माने रखना, ऑन माने ऊपर, ऊपर रखना, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग है टू वियर, WEAR। राजा ने क्या पहने? ही वोर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। क्यों? सिंपल दिखने के लिए। दूसरा काम क्या क्या सिंपल दिखने के लिए? ही लेफ्ट हिज हॉर्स बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट। हर्मिट की हट से थोड़ा दूर होने पर ही, काफ़ी दूर होने पे बॉडी गार्ड के साथ छोड़ दिया अपने हॉर्स को। एंड ही वेंट ऑन एलोन। तीन काम करता है सिंपल दिखने के लिए। Whether he met the hermit or not, we shall see the next day. Whether the hermit answered the question or not, that also we will see in the next video. And moreover, don't forget to do your homework. You are going to get your homework in your Google Classroom assignment. Okay, our questions. Thank you and have a nice day.